شب ولادت میں صبر سے نہ کیوں کرے جانو مارے قربان شب ولادت میں صبر سے نہ کیوں کرے جانو مارے قربان ابو لہب جیسے سخت کافر ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب بیٹھا ابو ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا لگے سرکار جو آنے والے دنیا میں اجالا پھیل گیا دنیا میں اجالا پھیل گیا سرکار جو گائیں گے خوشی کا ہم نغمہ گائیں گے خوشی کا ہم نغمہ سرکار جو آنے ہر بار سجائیں گے اپنا گھر بار سجائیں گے اپنا سرکار پیڑ کا مار کے آپ سنے ہوں گے پتھر کے پتھر کا کوا پڑنے کا بات آپ سنے ہوں گے میں اس بات سے کوئی شیئر کیے چکا ہوں گا دنیا میں اجالا پھیل گیا
دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اور پڑھے ایک بار اور ان سے پڑھایا ہے، لیکن ایک ہمارے بڑے عزیز یہ حافظ القاری سرور صاحب اور انہوں نے صرف ایک آواز پہ وہ عالم کا انشاءاللہ یہ پور شریف کا میرے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا میری عمر برکت عطا کرے، مہمان رسول بھی ہے اور آج کی اس محفل کے نام کھانے حبیب بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے عزیز سے یہ جو شاہ حافظ سنیں گے آپ لوگ؟ آج کی رات بڑی مبارک رات اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑی کر دیجیے، بڑی کا کام ہے چلنے دیجیے، ایسی رات سال بھر کے بعد یہ رات آتی ہے، اگر آپ گرا نہ گزر تو بڑی کر دیجیے۔ سبحان اللہ اپنا شوق اور ذوق کو سلامت رکھے اور بڑا درد کے ساتھ بھائی سرور ادا خان کو آپ حوالے کرتا ہوں، استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا ہے؟ ہم لوگ فرش والے ہم لوگ چھوٹے آئے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا ہے؟ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا کرنے؟ اس رضا عرش میں اڑتا ہے فرق، ہمیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، پروردگار اپنے محبوب کی غلامی بس قبول فرما، ہم سب کی اس محبت کو اللہ قبول فرما۔ آج کی رات ہے اور بالکل آج اللہ کی نوازشات عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہے اور اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بخشا ہے۔ آج رات ہے اپنے رب سے معافی کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ بڑی بہتر کے ساتھ بھائی سرور ادا خان کا بات دے رہا ہوں آج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مصاحبین کی قلوہ خان کو محترم سرور ادا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا عمران صاحب کا اپنی بہت محبت سے محبت کو سلامت رکھے اور آپ سب کی محبتوں کو زندہ سلامت رکھے۔ چند شیخ کے لیے کچھ منٹ کے لیے آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، کچھ شیخ کی نعت پاک آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، سننے کی خواہش مند ہے، ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ جو سب سے الگ سب سے وسیع سب سے ہے پیارا، جو سب سے الگ سب سے وسیع سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، جو سب سے الگ سب سے وسیع سب سے ہے پیارا،
पहुंचाता हूँ, समाप्त करवा दीजिए। आका है हमारा, आका है हमारा, कि सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा। कहती रसूलुल्लाह, समाप्त करवा दें। कि सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, जो कह दिया मौला ने वही होके रहेगा। सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, जो कह दिया मौला ने वही होके रहेगा। महशर में फकत, महशर में फकत उसका ही फरमान रहेगा। महशर में फकत उसका ही फरमान रहेगा। वो जिस पे है अल्लाह ने हाँ, वो जिस पे है अल्लाह ने हाँ, वो जिस पे है अल्लाह ने बोले हाथ उठाना। साथ रहने लगे। आका है हमारा, जो हर आशिक रसूल के दिल में जो आका की मोहब्बत होती है, शेर पहुंचाता हूँ समाज पर माने, क्योंकि आज हमारे हुजूर इस्लाम के रोज़नामे हर जगह पे लोग करते हैं। ये उन्हीं काम को कराने से शेर पहुंचाता हूँ समाज पर मानो कि खबर कर दीजिए या रसूल अल्लाह। शेर पहुंचाता हूँ समाज पर माने कि जो पुलिस होते हुए कांटों पे चला है, जो पुलिस होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अज़मत के लिए दर्द समा है। जो पुलिस होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अज़मत के लिए दर्द समा है। अपने ही नहीं, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है। अपने ही नहीं, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है। तौहीद कभी, तौहीद कभी, तौहीद कभी होगी नहीं उसकी कबाड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका है हमारा, आका है हमारा, वो मालिक मुख्तार, एक मुख्तार, मुख्तार, वो मालिक मुख्तार, एक मुख्तार, मुख्तार। ऐसे सरकार है सरकार है सरकार, ऐसे सरकार है सरकार है सरकार। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu
سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जो लोग ज्यादा समझ गए हैं वो नीचे चले गए हैं, जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं वो ज्यादा ऊपर है. ऐसा ही समझा जाए, क्या समझा जाए? प्यारे बच्चों, अगर नीचे आप लोग चाय पी लिए हो तो ऊपर चले आइए, नहीं तो मुझको नीचे आकर तकलीफ करना पड़ेगा. एक आदमी, कोई बड़ा आदमी जाके बोल देगा कि अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, ऊपर आ जाओ. और सलातो सलाम होगा, आप लोग ऊपर चले आइए और थोड़ा सा आप लोग करीब हो जाइए, आ जाइए, ऐसे थोड़ा सामने बैठ जाए. 10-20 मिनट उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा. इंशाअल्लाह शिरनी लेकर, दुआएं लेकर, बरकतें लेकर हम लोग अपने अपने घरों को जाएंगे इंशाअल्लाह. आ जाइए, आप लोग अच्छे लोग हैं. एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग नीचे हैं वो ऊपर आ जाए. कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला. हाँ, अब आप जो है सुने, आप थोड़ी देर तकरीर भी आपने सुन लिया है और शानदार आपने नाम भी सुना. माशाअल्लाह, दोनों साहिबान ने दिल जीत लिया. अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे और अल्लाह ताला खूब इन्हें पढ़ने की तौफीक दे. हज़रात, हम और आप यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि हम आमद रसूल की खुशी का इजहार करने के लिए. वरना रोजाना का मामूल ये होता है कि खाना खाकर सो जाते हैं ना. बहुत अगर कुछ काम करता है तो मोबाइल लेकर टी करते रहते हैं. अब कुछ लोग यहाँ भी मोबाइल में लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सामने से नहीं देख रहे, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं. अपने अपने देखने का नजरिया है, अपने अपने सुनने का नजरिया है. तो सोच रहा हूँ कि कुछ लोग जो नीचे हैं वो आ जाए, बरकतें सबको बराबर मिल जाए. अपना कहेंगे कि मुझको बरकत कम मिली है. एक बात जान ले आप, तो हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, सदकात भी करते हैं. जिसको जितनी इस्तिताअत होती है वो अपना काम करता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी और जमानत नहीं दे सकता उसकी नमाज, उसकी इबादत, उसके सदकात कबूल हो गए. बोले आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कोई ऐसा दुनिया का आलिम है, मुफ्ती है जो कह दे कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई? कोई है दुनिया का ऐसा आलिम कह दे कि तुम्हारा हज कबूल हो गया? है कोई दुनिया का ऐसा आलिम जो कह दे कि तुमने जो सदका दिया वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया? नहीं. लेकिन एक अमल है, जो अमल बंदा करे तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है. वो कौन सा अमल?
सोचते होंगे कि मौलाना कैसी बात कर रहे हैं। आप खूब पाक साफ हो जाएंगे, खूब अच्छे से नमाज पढ़िए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपसे पूछा जाए कि साहब आपने नमाज पढ़ा या आपके सजदे कबूल हो गए, तो आप कहेंगे कि उसकी मर्जी कबूल करना। लेकिन एक अमल है, जब बंदा करता है तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। वो कौन सा अमल है? वो अमल है उसके महबूब से मोहब्बत, वो अमल है उसके महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने, वो अमल है उसके महबूब की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना, इजहार, खिराज अकीदत। जब बंदा उसके महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है, उसके महबूब की बारगाह में सलात व सलाम के नजराने पेश करता है, दुरूद की तालियां जब पेश करता है, तो रब इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। यकीनन जब अल्लाह भी पढ़े, फरिश्ते भी पढ़े और जब उसके बंदे भी पढ़े, तो फिर उसके कबूल होने में कोई डाउट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अमल वो है जिससे रब राज़ी होता है और इससे महबूब की मोहब्बत का इजहार होता है। तो जरा दुरूद जिसको याद है पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमाम जुद्दी वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको जब हमारे भाइयों को दुरूद याद नहीं कि ये मामला है, भैया आइएगा जल्दी, भैया आइएगा, हाँ भाई जो जाए उसको बुलाइए। अच्छा जिसको दुरूद नहीं आते वो कर रहेगा। अच्छा कुछ लोग तो जनाजा में जाके भी गंदी मारते हैं, और इमाम के लिए तो है इमाम की, अच्छा ये बुलाया हम लोगों ने निकाल दिया, इमाम का जो नियम है इमाम ने, तो इमाम तो कहता है कि मैं इमाम मुक्तदी हूँ, आप भी इमाम हो जाएंगे। आप अल्लाह ने दिया है, थोड़ी कोशिश करें, जो दीन की जरूरी बातें उसे आप समझें। छोटी छोटी चीजें आलिम साहब, इमाम साहब को बताते रहते हैं। बाप की मैयत है, बेटा सामने खड़ा, उसको आए क्या कि खोले क्या कुछ। अजीजों अकारिब के जनाजे में हम जाते हैं, लेकिन अफसोस कि हमें कुछ आता नहीं, और जिसको आता है उससे हमें बनता नहीं, तो उससे कुछ ले ले। मेरे अजीजों, इस मिलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने का मकसद ये है कि आप तालीमात मुस्तफा से करीब हो, दीन से रग़बत रखिए, मस्जिद से अपना ताल्लुक रखिए। ना जाने कब इस मस्जिद से आपका इंतकाल का ऐलान हो जाए। मस्जिद से सबका ताल्लुक होना चाहिए और बेहतर ताल्लुक होना चाहिए। यहाँ के इंतजाम और यहाँ के इंतजाम को हर आदमी देखे, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, ये हर फर्द की जिम्मेदारी है, ना कि जिन लोगों को आपने बना दिया है अब आप ही समझते रहिए हम तो चले की नमाज पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, और इस दीन में हम और आप पैदा हुए हैं। तो जिस तरह से आका अलैहिस्सलाम को उम्मत का दर्द था, उम्मत से मोहब्बत थी, उम्मत का गम था, अभी सुन रहे थे आप, ये हमारा ईमानी फरीदा बनता है कि हम भी मिल्लत इस्लामिया के दर्द को रखे खुशी हो। कोई भूखा सो न जाए, भूखा उसको खाना खिलाए, कोई बेसहारा न रह जाए, उसके सहारा बनने की हम कोशिश करें। मेरे अजीजों, तालीमात मुस्तफा को जिस दिन हम
अपनी जिंदगी का महवर बना लेंगे, उसमें हसना की चादर को जिस दिन हम ओढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत अता करेगा और महशर में भी इज्जत अता करेगा। मेरे अजीजों, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं भी सोच रहा हूँ कि किस पॉइंट को आपके पास रखूं और अपनी बात खत्म करूं। एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चंद शेर नाम का पढ़ लो, इजाजत दो। कितने लोगों की इजाजत नहीं? इजाजत है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद कम वक्त में मैं आप तक बातें पहुँचाकर सलातो सलाम पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे न्यारे पे या नबी सब करम है तुम्हारा, ये तुम्हारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये तुम्हारे न्यारे हुए हैं, ये तुम्हारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तस्वर ही आले हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मकनियतुल मक्की की आमद, मदनी की आमद। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे संभाल न सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार जब किसी को देते हैं ना, तो रहमत की दरिया बहा देते हैं, करम का दरिया बहा देते हैं। सरकार जब देते हैं किसी को ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे खान भाई है, बेपना मोहब्बत करते हैं, रहने सलामत है। रसूल कायनात जब किसी को देते हैं तो नाम तौल के नहीं देते, और जिसको दे देते हैं वो वक्त का कलंदर हो जाता है। सुभान अल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तस्वर ही कैसा, अब कमी का तस्वर ही कैसा, जब से मगते तुम्हारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्वर ही कैसा, जब से मगते तुम्हारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा शेर है, नफसी नफसी का आलम हो, इज़हबू इला गैरी की सदाएं मुमकिन। लेकिन इस पतन माहौल में भी मेरे आका कहेंगे आओ, अना रहा मैं तो इसीलिए हुआ मेरे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह। हश्र के रोज़ जब मेरे आका उम्मती की सिफारिश करे। सुभान अल्लाह हो हश्र के रोज़ जब मेरे आका उम्मती की सिफारिश करेंगे। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा। जो दीवाने तुम्हारे हुए अब कुछ लोग बातें बनाते हैं, नबी मेरी तरह है, तेरी तरह है, ऐसे है वैसे शायर हो, उनसे बड़ा कोई शायर नहीं है। अरे जब नबी जिब्रील की तरह नहीं हो सकते, नबी जिब्रील की तरह नहीं हो सकते, और नबी के मकाम और मनसब को जिब्रील न नाप पाए, 14वीं सदी का जाहिल मौलवी कहता है मेरी तरह। अब जाहिल हो क्या खाए हो तुम? अगर तुम्हें अल्लाह अक्ल दिया है उस अक्ल का इस्तेमाल करो। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई खाना है न होगा, कोई दूसरा नबी सा न हुआ न होगा। हश्र के रोज़ जब मेरे आका उम्मती की सिफारिश करेंगे। उम्मती की सिफारिश करेंगे। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा। जो दीवाने तुम्हारे हुए कहेगा उन्हें मैंने बख्शा। जो दीवाने तुम्हारे ऐसे लोग सुनेंगे कहते यार सुनिए कोई लगाता था हमको पास तक ना बिठाता हमको पास तक ना बिठाता तुमको या रसूल अल्लाह। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। कोई मोहरा लगाता हमको पास तक ना बिठाता तुमको। जब उसे थामा है दामन तुम्हारा, जब उसे थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले सरकार का करम है कि आपने मुझे यहाँ बिठाया है, वरना हमारी कोई ऐसी हैसियत नहीं। सरकार का करम है
बात अब तक बनी हुई है। कोई मोहल्ला लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा था दामन तुम्हारा, है दामन तुम्हारा, अल्लाह वाले हमारे, है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे। शेर और सुनेंगे आप, सुनेंगे। उनके दरबार से जब भी मैंने सैयदा के वसीले से मांगा, सैयदा के वसीले से मांगा। बस इतना सा फर्क है कि हम वसीला से मांगते हैं और कुछ जाहिर डायरेक्ट मांगते हैं, और वसीले से जो मांगता है उससे मिलता है, डायरेक्ट जो मांगता है ना उससे खुदा मिलता है ना उससे रसूल। उनके दरबार से जो भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौज मिली है, मुझको खैरात फौज मिली है, खूब अपने गुजारे फौज मिली है, मुझको खैरात फौज मिली है, खूब अपने गुजारे हुए, और चाहते हो अगर नेक नामी मेरे आका की कर लो गुलामी, दुनिया में इज्जत चाहते हो, आखिरत में इज्जत चाहते हो, तो नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से जब वाबस्ता हो जाओगे ना तुम्हें दुनिया में महमूदी मिलेगी, ना कब्र में तुम महमूम होगे, बल्कि जहाँ जाओगे तुम्हारा काम बनता चला। अल्लाह कि अल्लाह राजी होगा तो किसी और नाम पर नहीं, जब राजी होगा तो अपना महबूब के नाम पर, न दान पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाम, जो कुछ है। चाहते हो अगर नेक नामी मेरे आका की करीला गुलामी, मेरे आका की करीला गुलामी, उनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून के मारे, उनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून के मारे। चमक कुछ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह आपको अपने दिलों को चमकाना है, बोले आप भी सोचते होंगे कि मेरा भी नसीब चमक रहा है, मेरा भी दिल चमक रहा है, तो दिल चमकेगा कैसे? कोई ऐसा दुनिया में साबुन तो बना नहीं है कि जिस साबुन को लगा लेने से दिल चमक जाए। कोई ऐसा केमिकल बना, न कोई ऐसा क्रीम बना
याद रखो अगर दिल चमकाना है तो आका से मोहब्बत करना होगा। घरों को रोशन करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, दुनिया के लाइट की जरूरत होती है, लेकिन याद रखो इस दिल में, इस नेहा खाने में इसकी रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा पावर का हो जाए फिर भी इसकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। रोशनी कौन पहुंचेगी, लाइट कौन पहुंचेगा? वो ईमान की रोशनी होगी, वो मोहब्बत रसूल की रोशनी होगी। जब बंदा अपने आप को अल्लाह और रसूल के सुपुर्द कर देगा तो अल्लाह उस बंदे की दुनिया भी रोशन कर देगा और उसका दिल भी रोशन कर देगा। मोहम्मद से बता, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या तो हो कदम दे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अगर इस आयत करीमा की जिक्र में आपसे तफसीली बातें करूं तो सुबह हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। और आप कहिएगा कि मौलाना इमरान ने आज माइक पकड़ लिया है, लग रहा है कि आज सोने लगे। मेरा ख्याल ऐसा है, मोहब्बत के साथ थोड़ी देर ही सही अपने आका की महफिल में जो लोग बैठ जाते हैं मोहब्बत के साथ, वो नहीं कि चले यार चलना है, चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। अगर इश्क है तब चलिए, मोहब्बत है तब चलिए, जोर जबरदस्ती दबाव में न चलिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुनिया की शोहरत, दुनिया के उलूम उस वक्त कबूल होंगे जब आप अल्लाह के रसूल से वाबस्ता होगा। अल्लाह के रसूल से जब आप मोहब्बत करेंगे तब आपके तमाम आमाल भी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएंगे। हासिल कलाम क्या है? अगर हमें अपनी जिंदगी कामयाब करना है तो आका से मोहब्बत करना। आका से मोहब्बत के बगैर हमारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं। आप सोचते हो कि कैसी बात करते हो, मैं बड़े करीब होकर एक बात आपको बता रहा हूं। मरना है सबको, आलिम को भी और गैर आलिम को भी। जो तकरीर कर रहा है उसे भी मरना है, जो सुन रहा है उसे भी मरना है। आपको डरिए नहीं, मौत जब आएगी तो कोई रोक नहीं सकता है, और मौत नहीं रहेगी तो कोई बोलिए कोई नहीं माने। मौत के लिए वक्त मुकर्रर कुरान में बड़ी बात और अल्लाह ने फरमाया कि जब मौत आती है तो 1 सेकंड पहले आती है, 1 सेकंड बाद। सारे लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, मरने के बाद क्या होगा? मस्जिद से ऐलान होगा फला का इंतकाल हो गया। कुछ लोग कब्र पे जाएंगे, कब्रिस्तान कब्र तैयार करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इसको हवाले किया जाए, निपटा दिया जाए। उसके बाद लोग पूजा करेंगे, 40वां करेंगे, पुलाव रोज खाएंगे, चले जाएंगे। आपका क्या मामला बनेगा? तो आप कहिएगा मौलाना की सवाल जवाब होगा, बिल्कुल होगा। और सवाल ओपन है, जवाब सबको मालूम है, ज्यादा नहीं, 3 ही सवाल है। कितना है? सबको मालूम है, पढ़े लिखे लोग। और सवाल क्या है? सवाल क्या है कि तुम्हारा रब कौन है? अच्छा, इसमें किसको नहीं मालूम है कि हम लोग का मालिक अल्लाह है? बोलिए ना, बोलिए। हम लोग भी करीब सैकड़ों करोड़ों वाले नहीं ना हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक बार ये हर आम खास मुसलमान को मालूम है कि हमारा रब बोलिए अल्लाह है, सुभान अल्लाह। अब दूसरा सवाल क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा
दीन क्या है? अच्छा, भोजपुर के मुसलमानों को बताना पड़ेगा कि राम कौन है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है। लोग तो पार हो जाएंगे माशाअल्लाह। जो लोग नहीं जानते हैं फंस जाए। अच्छा, खूब जानते हैं, खूब जानते हैं, अल्लाह की वहदानियत को भी जानते हैं, इस्लाम के बारे में भी जानते हैं, तो क्या पास हो जाएंगे? नहीं होगी। तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल क्या होगा? अच्छा, ये जो सवाल है सिर्फ भोजपुर के मुसलमानों से होगा, पूरा भोजपुर वाले लोग से होगा, उधर वाले से भी होगा एक सवाल। अच्छा, उधर वाले से भी यही सवाल, इधर वाले से भी यही सवाल, सेम सवाल है, सवाल सेम है। अब जवाब देखो कौन देगा? जो लोग पूरी जिंदगी अल्लाह 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 अल्लाह, और जब रसूल अल्लाह का नाम आए तो जिग्राफिया बदल जाए, जब आका का नाम आए तो जिग्राफिया बदल जाए। बाद शहरों में क्या लोग समझे? तो पहला सवाल अल्लाह की रूहियत के हवाले से होगा, दूसरा सवाल इस्लाम के कानून से होगा। बड़े बड़े जीनियस लोग, बड़े बड़े काबिल लोग जवाब दे देंगे, जाहिल भी जवाब दे देगा, मुसलमान है तब। अच्छा, मुसलमान से ही होगा कि गैर मुसलमान से भी होगा? सारे इंसान से होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ भी कह रहे हैं कि अल्लाह यहाँ भी